Hello students. In the last lecture, we have started water resource management in which we have discussed about the river valley projects and we had discussed about the Bhakra Nangal project. Now in this lecture, we are going to discuss one more important dam that is called Damodar Valley project. So before start, first of all, we should know about about the name Damodar, what it is actually. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस प्रोजेक्ट का नाम जो दामोदर पड़ा है वो क्यों? बिकॉज ऑफ द रिवर दामोदर. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी कि दामोदर वैली प्रोजेक्ट इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ द स्टेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड झारखंड. जैसे कि हमने डिस्कस किया था इन द लास्ट मॉड्यूल ऑल्सो दैट भाखरा नंगल प्रोजेक्ट इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ 3 states, पंजाब, हरियाणा and Rajasthan. Likewise, it is a joint venture of project of 2 states that is known as West Bengal and second is Jharkhand. Okay. अब क्योंकि दामोदर रिवर के ऊपर ये प्रोजेक्ट बनाया गया है इसलिए इस प्रोजेक्ट का नाम दामोदर वैली प्रोजेक्ट है. एंड इट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. After the independence, this is one of the first important project, and this project was started in the year 1948. Now this river Damodar is also known as Sorrow of Bengal. Why? Because when there is a huge amount of rainfall, then the volume of the river Damodar gets humongous, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक फ्लड आता है एंड जो वेस्ट बंगाल का रीजन होता है वहाँ की प्रॉपर्टी लॉस, क्रॉप लॉस, इवन द ह्यूमन लॉस, लाइफ लॉस हो जाता है. इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सॉरो ऑफ बंगाल. सो एग्जाम में कभी कभी ये पूछा जाता है विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज सॉरो ऑफ बंगाल, देन इट्स आंसर इज रिवर दामोदर. Likewise, we have this sorrow word for the other states also. You should know them also. Which river is known as sorrow of Bihar? That is known as Kosi river. Which river is known as sorrow of Odisha? That is known as Mahanadi. So जो rivers sorrow का रूप लेती है, जो river devastating होती है for the state, government of India takes initiative to reduce those problems by constructing a dam over it. So that is why we have built a Damodar Valley project over the river Damodar to reduce the impact, to reduce the adverse effect on the life of the people and their property. Okay. Now another point is river flows from east of Chota Nagpur Plateau. Now अगर आपने मेरी छोटा नागपुर प्लेट्यू की वीडियो देखी है तो उसके अंदर मैंने एक चीज मेंशन की थी कि व्हेन एवर यू एनकाउंटर द टर्म छोटा नागपुर देन सबसे पहले आपके दिमाग में जो स्टेट का नाम आना चाहिए वो होना चाहिए झारखंड. सो जब यहाँ पे इफ आई एम सेइंग कि इट इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ वेस्ट बंगाल एंड झारखंड, then it means that there is an influence of Chota Nagpur Plateau also. And in the lecture of Chota Nagpur Plateau, I clearly mentioned that there is a river called Damodar River which makes Rift Valley. I will discuss again about the Rift Valley in few minutes. But before it, I would like to tell you about the course of a river Damodar. So it flows from east of Chota Nagpur Plateau. Then after Chota Nagpur Plateau, say it's a part of Chota Nagpur Plateau. This is Chota Nagpur Plateau. Then after Chota Nagpur Plateau, the river enters into the state of Bihar. Then it goes to the state of Jharkhand, and then it enters into the state of West Bengal. This is how the geography of this is how the map is formed. India का अगर आप map देखोगे, this is how the states are interconnected with respect to each other. Okay. अब ये तो हो गए आपके states. इसके बाद ये क्या होता है? रिवर फॉल करती है रिवर हुगली. हुगली इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिवर इन द स्टेट ऑफ द वेस्ट बंगाल. सो दिस रिवर आफ्टर फ्लोइंग दीज स्टेट्स एंटर्स एंड मिक्सेस विद द हुगली रिवर. आर यू क्लियर विद दिस? ओके. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज there are 2 important tributaries of the Damodar river, that is known as Bokharo river and the Konar river. Bokharo river and second is Konar river. Both river are situated in the state of Jharkhand only, and इन दोनों के ऊपर डैम्स भी बनाए गए. We have Bokharo dam as well as Konar dam.
सो आपको ये इंपॉर्टेंट है, दामोदर रिवर के ऊपर जो उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं बोकारो एंड कोनार, उसके ऊपर वी हैव देयर डैम ऑल्सो, बोकारो एंड कोनार डैम. ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट. So therefore finally the Indian government established Damodar Valley Corporation. Damodar Valley Corporation to preserve the life of the people of the West Bengal and the property loss. Okay, so one more thing is left for this topic, that is we were talking about the Rift Valley. Okay, so what is actually the Rift Valley? So I think you have jotted down these points and you have jotted down these points. Okay, we'll now discuss about the Rift Valley which is left. If there is a surface, suppose this is a surface, okay, project it so that it is clear. Is it clear, visible? Okay. अब क्या होता है, मान लो कि ये जो पार्ट है ये गया, ये तो अभी भी ऊपर ही है, ये क्या हो गया, सबमर्ज्ड हो गया. दिस इज सबमर्ज्ड बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक और एनी अदर एक्टिविटी, बिकॉज ऑफ नेचुरल डिजास्टर. हो सकता है ये पार्ट क्या होगा, सबमर्ज्ड हो जाएगा कंपैरेटिवली टू इट्स एडजेसेंट एरिया. तो एडजेसेंट एरिया जो ऊपर रह गए हैं इसको बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन्स. क्या बोलते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स. और ये जो पार्ट है दिस इज अ सबमर्ज्ड पार्ट, इसका जो लेवल है सराउंडिंग से नीचे हो चुका है. तो अब क्या होगा, इसके अंदर जो ये रिवर जा रही है, दिस रिवर इज फ्लोइंग, दिस इज कॉल्ड दामोदर. तो एक चीज है, ये जो पार्ट है ये क्या है, छोटा नागपुर प्लेट्यू का पार्ट है. क्या है, पहले क्या था, छोटा नागपुर प्लेट्यू का. वापस से मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि इतना समझ में आया ना आपको. तो जैसे कि मान लो पहले छोटा नागपुर प्लेट्यू हमारा ऐसे था, दिस इज वन सरफेस. अब क्या हुआ, बिकॉज ऑफ रिफ्ट वैली इट गॉट सेपरेटेड इनटू टू पार्ट्स. दिस पार्ट इज कॉल्ड नॉर्दर्न पार्ट एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड सदर्न पार्ट. और यहाँ से जो रिवर जा रही है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, दामोदर रिवर. इस नदर पार्ट को हम लोग बोलते हैं हजारीबाग प्लेट्यू एंड दिस इज कॉल्ड एज रांची प्लेट्यू. क्योंकि व्हाट डू यू मीन बाय प्लेट्यू इज अ लैंड फॉर्म जो कि विच इज अप्रेस्ड विद रिस्पेक्ट टू इट्स एडजेसेंट पार्ट. तो क्योंकि इस पार्ट से ये लोग ऊपर उठे हुए हैं इसलिए इनको हम लोग ने क्या बोला, प्लेट्यू. सो दिस इज रांची प्लेट्यू and both the plateaus are located in the state of Jharkhand. Okay, so this is one of the Rift Valley. एग्जाम में पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के अंदर कौन कौन सी रिवर्स हैं जो कि रिफ्ट वैली बनाती हैं. सो दामोदर इज वन ऑफ द रिवर विच फॉर्म्स रिफ्ट वैली. ओके, आई होप यू आर क्लियर विद दिस. ओके, नाउ द नेक्स्ट टर्म इज, अच्छा नाउ यू शुड ऑल्सो नो वन फैक्टर. सी, एक तो ये हो गया, एक सेकेंड रिफ्ट वैली कौन सी है, ये भी मैंने आपको पहले अपने लेक्चर्स में बताया हुआ है. आई एम रिवाइजिंग यू. दैट इज कॉल्ड नर्मदा रिफ्ट वैली. दैट इज नोन एज नर्मदा रिफ्ट वैली. आपने शायद सुना हो, बट लेट मी टेल यू वंस अगेन. ओके, नर्मदा रिफ्ट वैली किसके बीच में ट्रैवल करती है, विंध्यांस एंड सतपुरा. ये इंडिया के वेस्टर्न साइड में. वी हैव डिस्कस्ड इलेबोरेटली अबाउट द विंध्यांस एंड सतपुरास इन माय मॉड्यूल्स. प्लीज लुक दैट इन द वीडियोस प्लेलिस्ट. यहाँ पे कौन सी जा रही है, नर्मदा. कौन सी जा रही है, नर्मदा. सो ये भी अप्रेज्ड है, ये भी अप्रेज्ड है. सो ये भी क्या हो गया, विंध्यांस प्लेट्यू या सतपुरा प्लेट्यू बोल सकते हो आप. बाकी जो नर्मदा है, नर्मदा इज अ रिफ्ट वैली. Okay, this is one of the important points which we have discussed. So likewise, Damodar is also forming a rift valley. और इस यहाँ पे earlier here used to be a forest. यहाँ पे क्या होता था, एक forest होता था जो कि submerged हो गया. क्या हो गया, submerged. जिसकी वजह से after a million of years we have started getting coal. That is why जो सबसे richest state है हमारे कंट्री में, जहाँ पे हमको कोल डिपोजिट्स मिलते हैं, दैट इज नोन एज झारखंड.
बिकॉज झारखंड में ही तो है आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू, वी हैव डिस्कस्ड. सो इट्स अ प्लेस वेयर वी फाइंड अ लॉट ऑफ कोल. झारिया इज वन ऑफ द प्लेस जहाँ पे खूब सारा हैवी डिपॉजिट है कोल का. So this is how we get the coal. And Chota Nagpur Plateau is one of the place where you find iron and coal simultaneously. Otherwise, in the whole India, in the whole world, it is very difficult to find iron and coal at the same place. So I hope you are clear with these things. These are the very basic concepts of the geography. So you should be clear with these terms with respect to their importance and the location. So I hope you like this video. If you like the video, please let me know in the comment box. Thank you so much, and please do subscribe this video. Thank you.